Hello student, in last video we have studied how to find the angle in a triangle. Now here there are few another examples where we find out the missing angles of a triangle. Like this is a figure ABC where we have to find out these two angles. Now angle A is given 112 degree. We know that the sum of angles, angle A plus B plus angle C is equals to 180 degree. Now if they have given this side is equal to this, that means they have given AB is equals to AC. Now we have to see that if AB is this side and the opposite angle is C, and AC is this side, the opposite angle is B, that means angle B is equals to angle C. Or there is a one trick, we can see that AB is equals to AC is a common in these two, so angle B, we leave the common one, angle B is equals to angle C. Now both are missing, so what will we do? We'll put the value in this 112 degree plus angle B plus angle C, that is equal to 180 degree. Now we will find out the addition of angle B and angle C, that is 180 minus 112 degree. Now what will become? What it comes? 10 minus 2 is 8, here 7 minus 1 is 6 and 1 minus 1 is 0. तो हमारे पास एंगल B प्लस एंगल C जो है 68 आ गया. बट अकॉर्डिंग टू द फिगर वी नो दैट B is equals to C. So what will we do? We are dividing these into two equal parts. That means 68 is divided into two equal parts. So we cut it. 2 3s are 6 and 2 4s are 8. So each angle B and angle C is equals to 34 degree. I think you understood this. Next question, based on this only we are taking up another example. Like the next question is, now there is a figure this and we have to find out angle E. We give name A, B, C. You can start from here also, you can start from here also, you can give another name also, but it should be in a capital letter like A. Now from here we understand AC is equals to BC, so C is common in both, that means angle A is equals to angle B. And the mathematical concept is, जो इस लाइन के ऑपोजिट एंगल बन रहा है, इस लाइन के ऑपोजिट बन रहा है एंगल बी और BC के ऑपोजिट बन रहा है एंगल A, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. बट इफ़ यू आर नॉट रिमेंबरिंग, देयर इज़ अ ट्रिक, वट एवर इज़ अ कॉमन लीव दैट एंड वी आर गेटिंग एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. ठीक है, तो एंगल A और B दोनों E के इक्वल हो गए और एंगल C इज इक्वल्स टू 44 डिग्री. हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है. तो एंगल A है E और एंगल B भी है E. ठीक है, और दोनों इक्वल हैं. आइदर यू राइट डाउन एंगल A प्लस एंगल B ओनली, इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर यू, एंड दिस इज़ 44 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हम E पुट करेंगे तब भी हम कर सकते हैं, या फिर हम इन दोनों को एज इट इज़ रहने देंगे. तो हमारे पास एंगल A प्लस एंगल B का सम जो आ गया वो आएगा 180 माइनस 44 डिग्री. नाउ वी सब्ट्रैक्ट A प्लस B इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज 6, here is 7, 7 माइनस 4 इज 3 एंड 136 डिग्री. दोनों इक्वल हैं और दोनों का सम 136 है, तो दैट मीन्स हम इन दोनों का हाफ कर देंगे. इसका 136 का हाफ करेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे. नाउ 2 6 12, 1 इज लेफ्ट y and 8 16. So I hope you understand
how to find out which two angles are equal in a isosceles triangle. Now next question is this, where this angle is given 30, we are giving name A B C D. हमने इसको नाम दे दिया A B C D. Now they have given this is 70 degree, this is 30 and this is 60. What will we do now? We are hiding this triangle. Which triangle is left now? ADC. So in triangle ADC we have A also and C also. So we'll write down angle A plus angle D plus angle C is equals to 180 degree. Now angle A is 60 degree and angle C is 70 degree. We put the value. Angle A is 60 degree, D we don't know, that is Z. So we put this. Now we add them. तो 60 प्लस 70 जो होगा वो होगा 130 प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हम एंगल D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एडिशन का है, जब हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा. एडिशन विल चेंज इनटू सब्ट्रैक्शन. तो एंगल D हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री. नाउ इफ़ वी हाइड दिस लाइन, इफ़ वी हाइड दिस वन लाइन AD लाइन, अगर हम हाइड कर लेते हैं तो हमारे पास बिगर ट्रायंगल आता है दिस वन. आइदर डू बाय दिस, और अगर हमें उससे नहीं करना है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे एक वर्टेक्स पे दो एंगल बन रहे हैं Y एंड Z. तो एंगल ADB प्लस, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल के एक वर्टेक्स पे दो एंगल बन रहे हैं तो इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा. तो हम ADB एंड ADC हम यहाँ से लेंगे ADB एंड ADC. तो इन दोनों का सम जो होगा ADC, इन दोनों का सम जो होगा वो होगा हमारे पास. अब हमारे पास एंगल ADB प्लस ADC दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों 180 डिग्री होगा? क्योंकि एक वर्टेक्स पे हमारे दो एंगल बन रहे हैं. तो हमें y प्लस z इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू z 180 डिग्री. अब हमें पता है y जो है हमारा वो हमें नहीं अभी भी नहीं पता है, पर z की वैल्यू हमने निकाली है दैट इज़ 50 डिग्री एंड द सम ऑफ दिस टू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो अगेन ये एडिशन हो रहा है, जब हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन. तो y की वैल्यू आएगी 130 डिग्री. गॉट इट. अब अगर हमारे तो y की वैल्यू हमारे पास 130 डिग्री आ गई है. तो हमारे पास एक और ट्रायंगल है ADB. हम इधर वाले ट्रायंगल को हाइड करेंगे ADB. तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ADB. तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री. हमें एंगल A पता है 30 डिग्री है. we have already just find it out, that is y 130 degree plus angle B is equals to 180 degree. now इन दोनों का एडिशन क्या आएगा 160 degree plus angle B that is equals to 180 degree. angle B is equals to 180 degree minus 160 degree. angle B is equals to 20 degree. I hope you understood this now. Now this is a next question where they have given a figure. This is a 50 degree and this is angle P. Now we are giving name E, F, G and H. हमने इसको E, F, G, H नाम दे दिया है. Now हमारे पास ये दो एंगल इक्वल हैं, ये दो साइड्स इक्वल हैं. तो जी एच के ऑपोजिट एंगल है ई और ई जी के ऑपोजिट एंगल है एच. तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ई जी एच एंगल ई प्लस एंगल जी
plus angle H is equals to 180 degree. Now और हम कह सकते हैं हमारा GE साइड जो है हमारे GH साइड के इक्वल है, तो G इज कॉमन, सो दैट मीन्स एंगल E एंड एंगल H आर कॉमन. नाउ दे बोथ आर इक्वल. G की वैल्यू पुट करेंगे हम, एंगल G प्लस एंगल E प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल H इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल E प्लस एंगल H इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री. तो एंगल E प्लस एंगल H इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. नाउ हमारे पास E एंड H जो हैं वो दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम इसका हाफ कर देंगे 130 का, दैट विल इक्वल्स टू 65 डिग्री. तो ये भी 65 डिग्री आ जाएगा और ये भी 65 डिग्री. नाउ वी कैन फाइंड आउट दिस एंगल. अगेन वी कैन से दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन वन वर्टेक्स, these two angles are formed, so the sum of these two angles is equals to 180 degree. तो हम लिखेंगे GHE एंगल GHE प्लस GHF एंगल GHF is equals to 180 डिग्री बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट एंगल. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है 65 डिग्री है, तो हम GHF की वैल्यू निकाल लेंगे 180 डिग्री. यहाँ पे हम GHF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री. नाउ GHF इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करो, 10 माइनस 5 गया 5, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 6 गया 1 and 1. तो दिस एंगल इज 115 डिग्री. नाउ अगेन दे हैव सेट GH इज इक्वल टू HF. तो H कॉमन है, दैट मीन्स एंगल G और एंगल F जो हैं दोनों कॉमन इक्वल. ठीक है, नाउ this is 115. Now we'll write down angle G plus angle H plus angle F is equals to 180 डिग्री. ठीक है, नाउ हमारे पास ये भी एंगल नहीं है और ये भी नहीं है, बट ये भी है तो ये भी है. ठीक है, तो हमारे पास G की वैल्यू नहीं है बट H की वैल्यू है 115 और F की वैल्यू है P, और आइदर राइट डाउन F ओनली. अब हमें G प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री. ओके, नाउ व्हाट विल यू डू हियर, G और F, अब हमारे G प्लस F जो है वो आ जाएगा 10 माइनस 5 इज़ 5, 7 माइनस 1 इज़ 6, 65 डिग्री. और जो हमारा G और F है वो इक्वल है, एंगल G एंड F इज़ इक्वल, तो हम 65 का हाफ कर देंगे, तो इट विल कम 32.5 डिग्री. और या फिर हम लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन में 32.5 डिग्री. Is it clear? I hope you understand this. Now here they have given according to the question ABC is a right angle triangle. जब हमें बोला गया ABC is a right angle triangle, that means right angle is formed at B, क्योंकि B जो है वर्टेक्स है. B is a center of A and C, मतलब दो रेज हैं AB and BC, तो B is a वर्टेक्स. तो हमारा जो राइट एंगल बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर. फाइन. Now they have said this line is equals to this. Here D point is here. This is the sign of triangle. So we can write down AD is equals to BD. BD is a common. So angle A is equals to angle B.
और हमें एंगल ए जो है 40 डिग्री दिया है, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा. दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो 40. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए, दिस स्मॉल ए. सो स्मॉल ए इज़, देखो हमारे पास ये पूरा राइट एंगल है. अगर हमें इतना हाफ पता चल गया है, ये 40 है, तो ये कितना होगा? दैट मीन्स 90 माइनस 40. ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी. ये पूरा एंगल जो है 90 डिग्री का है और हमें निकालना क्या है? डी बी सी. दैट इज़ ए बी सी इज़ द एडिशन ऑफ ए बी डी. एंगल ए बी डी एंड डी बी सी. हमें ये फाइंड आउट करना है, जो कि हमें स्मॉल ए दिया है और ये हमने फाइंड आउट कर लिया क्योंकि 40 दिस एंगल इज़ इक्वल्स टू दिस और ए बी सी इज़ 90 डिग्री. सो हमें ए की वैल्यू निकालनी है. हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, तो हम क्या करेंगे? 90 माइनस 40. जब हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे लाएंगे या राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. तो एंगल ए इज़ इक्वल्स टू 50 डिग्री. Got it? It's a very simple question. Just we have to understand which side. पहले हमें लिखना है कौन से साइड्स इक्वल हैं और जो भी साइड इक्वल है उसमें कॉमन क्या है? डी. तो दैट मीन्स दैट इज़ नॉट इक्वल. दैट एंगल इज़ डिफरेंट. ए एंड बी इज़ इक्वल. ए इज़ ऑलरेडी गिवन, दैट इज़ 40 डिग्री. तो हमारा बी यहाँ पर जो ये ए बी डी है, ये वाला है बी जो आएगा वो आ जाएगा 40 डिग्री. नाउ विल सॉल्व इट आउट. Next question is, now the next question is given, this is the reflex angle. बाहर वाला एंगल दिया गया है. ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर. दिस फिगर इज़ पी क्यू आर. ठीक है, तो हमारे पास अब हमें पहले यही वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं हम कि दिस एंगल व्हाट विल बी दिस एंगल. एंगल क्यू आउटसाइड जो है हमारा, तो हम कह सकते हैं एंगल क्यू इज़ कंप्लीट एंगल. ये पूरा एंगल है हमारे पास. ठीक है, तो आउटर साइड जो है वो है रिफ्लेक्स एंगल. तो 320 डिग्री प्लस इसको हम ले लेते हैं एक्स. एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. इन दोनों का सम, क्योंकि एक सर्कल बन रहा है, तो दिस इज़ अ कंप्लीट एंगल. सो जब सर्कल बनता है तो वो कंप्लीट एंगल होता है. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ये 320 है, ये एक्स है, इन दोनों का सम जो है 360 के इक्वल है. तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. 360 ये प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 320 डिग्री. तो x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. तो ये आ गया हमारा x. अगर हमारे पास x 40 डिग्री आ गया है, ये 85 है, कैन वी फाइंड आउट a? तो वील राइट डाउन एंगल p प्लस एंगल q प्लस एंगल r इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वेयर एंगल P is not given, that is given A. Q we have just find out 40 degree and R is given 85 degree. That is equals to 180 degree. So A plus 125 degree, that is equals to 180. 5 plus 0 5, 8 plus 4 is 12. तो A is equals to 180 डिग्री. अब हम फिर से इस प्लस वाले साइन को, प्लस वाली नंबर को हम राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं. तो ये प्लस जो है उधर जाके हो जाएगा माइनस. तो a इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 इज़ 5. यहाँ पे बचेगा 7. 7 माइनस 2 इज़ 5. तो a विल बी 55 डिग्री. तो दिस विल बिकम्स 55 डिग्री. वी कैन सी दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन ऑल्सो in our question bank. So in this question it's a very simple. They have given us full circle. This is a full circle, so that means it is a complete angle. It is a complete angle. तो we can take up this x. तो हम complete angle का सम क्या होता है हमारे पास? 360 डिग्री. It is 360 डिग्री. Okay, so what will we do? Just a minute. We will add these all. 80 degree plus 120 degree plus 90 degree plus x, that will equals to 360 degree. 0 plus 0 plus 0 is 0. 9, 2 plus 8 is 10, 10 plus 9 is 19, 1 carry over,
1 plus 1 is 2. 290 plus x is equals to 360 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या आएगी 360 डिग्री. अगेन इट विल गोज ऑन लेफ्ट राइट हैंड साइड एंड इट विल बी subtracted. x is equals to 70 degree. This is the answer of this question. Now you can see this is a looks very difficult, but it is a very easy question. Just see this is a straight line. Here it is a one vertex where they are forming 3 angles. Okay, now we can take it y. जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन पे एक वर्टेक्स पे एक से ज़्यादा एंगल बन रहा है तो उनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा. तो दैट मीन्स 37 डिग्री प्लस वाई प्लस 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है और एक वर्टेक्स पे बन रहा है. अब हम इनको ऐड करेंगे. 7 + 3 is 10, 1 कैरी ओवर, 5 + 3 is 8 + 1 is 9 plus y. So it will be equals to 180 degree minus 90 degree. So y is equals to 90 degree when. So this is 90. Fine. Again you can see this is a straight line. It is a 115. So we can find out z. Again we can say z plus 115 is equals to 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों एंगल्स एक वर्टेक्स पे बन रहे हैं और इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा. फाइन. तो z is equals to 180 डिग्री minus 115 डिग्री. तो z will be equals to 10 minus 5 is 5, 7 minus 1 is 6 and 1 minus 1 is 0. So 65 degree. So this will come 65. This is y has come 90. Now we can find out x. So we can write down x plus y plus z is equals to 180 degree. This is forming a one triangle. तो x हमें पता नहीं है, y हमने 90 डिग्री निकाला है और z हमारा आया है 65 डिग्री. तो दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. 9, 5 plus 0 is 5, 9 plus 6 is 15. That is equals to 180 degree. X is equals to 180 degree minus 155 degree. तो x क्या आ जाएगा हमारे पास. 10 minus 5 is 5, 7 minus 5 is 2, 25 degree, क्योंकि 1 minus 1 is 0. I hope you understand this type of a question now. If there is any query, please comment me in a chat box so that I can take up that question and I'll solve your queries. Thank you and have a nice day.